अस्सलाम वालेकुम, मैं सफदर खैसर कौसर न्यूज़ से। आइए मैं आज आपको बता दूं, शहर मैसूर आपके अपने उदयगिरी इलाके में खुबा स्कूल के बिल्कुल रूबरू मौजूद अरमान मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने मैसूर के लिए एक मिसाली साबित हुए हैं। और अरमान का देखिए कि सुबह 4:30 बजे उठते हैं और रात 10:30 बजे सोते हैं। 7:30 बजे सुबह उठना अपने आप में बड़ी बात है। उसके बाद स्विमिंग जाना, रात 10:30 बजे तक अपनी पढ़ाई और स्पोर्ट्स को अमली तौर पर यानी प्रैक्टिकल तौर पर करना, ये बड़ी बात है। तमाम मैसूर के लिए ये खुशखबरी की बात है। मैं अरमान से, उनके वालिद से और उनके वालिदा से जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर वो क्या चीज थी जो अरमान को यहां तक ले आई है। क्योंकि सिर्फ ये मैसेज नहीं है, ये न्यूज नहीं है, बल्कि हर वालिदैन को एक पैगाम भी लूंगा इनके पेरेंट्स से कि वो क्या क्या बातें थी जो अरमान को इस तरह की कामयाबी मिली है। इस न्यूज को ज्यादा शेयर करें और अपने कमेंट दें ताकि अरमान को आपके कमेंट से और हिम्मत मिल सके और वो सिर्फ आज मैसूर में नाम रोशन किए, कल सारे मुल्क में नाम रोशन हो सके। हेलो, कांग्रेचुलेशंस अरमान। Thank you. Your parents are so much happy about you, and all Mysoreans also very happy about you. So what do you want to say? Even I am happy. Of course you have to. Okay. Tell me about your achievements. Behind my success, my parents' dedication, my school support, our pool support, coaches, and all have helped us a lot. Okay. So tell me about your personal things. Means morning 4:30 you are awake and till 10:30 you will be. So how it is from you? How it is come? Because this practice is very hard. So what do you want to say? Early morning 4:30 you are get up now. So how? I'll get up at 4:30 because of my dedication. Okay. And I'll get ready till 5 o'clock and go to swimming pool and again come back at 7 o'clock, and at 8 o'clock bus will be there, so I should get ready and be ready at 1 hour I should get ready to go to my school. And again at 4:30 I come back. Half an hour I should eat my food, have Yes. and I should change and everything, and again go to swimming pool at 5 o'clock, and again I come back at 8:30, and from 8:30 to 10 o'clock I read, study, do homeworks and all, and from 10 o'clock to 10:30 I eat and just sleep. Very nice. So if I ask you morning 4:30, when you are awake and go to swimming pool now, you feel any cold and not? Because everybody thought like At first- water was very cold. At first I thought it like a cold, then I got practice and now the water is warm. So it won't this one means No, morning, no. evening, anytime you can ready. Yes. Huh? Yes. So the practice makes a man perfect. Yes. So you are the inspiration for all. If we dedicate something now, we definitely will succeed. So Arman, who is your ideal in this, particularly in swimming pool? My ideal is Michael Phelps. Okay. He has 28 gold, 3 silver and 1 bronze. He at first time he had went to Olympics, but he couldn't place anything. But still, over there it was clear that a long boy with long limbs who had a very rigorous training is Michael Phelps in the first time, and in second time he won 8 gold. Okay. Then from there he started his career. Okay. What do you want to be in future? What is your aim? I want to become a Olympic swimmer, and I want my names to be in the history. Those congratulations about that. And what about the studies and all? How you are? My mother helps me in all my studies, and there is a group in our school called as ERP, and also my teachers, they send all the notes in the ERP so that I can write it as soon as it's possible. How about your school and all? It's very nice, it's helping me, it supports a lot. If the school doesn't help, I may go back in studies, but still they are helping a lot. Even our chairman sir is supporting us very much regarding the transport. First, the transportation was coming very late and I was not able to reach at time for swimming at evening. Anyhow, Arman, your name itself is Arman. So every parent wants to be her daughter or his son like you. Inshallah. They are having some Arman. Wish you all the best. Thank you. And may Allah give you all success. Thank you. My name is Maria Kulsum. Which is your name? I am first standard.
Which school? My school name is Kautilya Vidyalaya. And how my brother has achieved this gold CBSE and all, I want my name to be like this in use. Of course you are. Wish you all the best. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपने मुझे फोन करके बुलाया कि आपके फर्जंद स्विमिंग में बहुत बड़ा कामयाबी हासिल किए हैं। सर, मैं जानना चाह रहा हूँ कि उनके बारे में आप थोड़ा डिटेल बताएं और आपका नाम बताएं। मेरा नाम समीर अहमद। जी। तो जो है मेरा फर्जन है, फर्स्ट स्टैंडर्ड के थे, अब 5th स्टैंडर्ड में ही। तो फर्स्ट इनका नाम आपको मोहम्मद अरमान समीर। तो कौटिल्य विद्यालय में पढ़ रही हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से। जब से फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे तब से स्विमिंग प्रैक्टिस कर रही। तो हर साल क्या है, सीबीएसई का स्विमिंग कॉम्पिटिशन आता है हर साल, सीबीएसई स्टूडेंट्स ओनली, अप टू 10th स्टैंडर्ड पीयूसी तक भी रहता वो। तो हर स्पोर्ट्स रहता है, सीबीएसई में भी रहता है, स्टेट में भी रहता है, आईसीएसई में भी रहता है। तो सीबीएसई के खाली ऑल ओवर इंडिया और अलॉन्ग विथ इंडिया के बाहर भी, अभी सिंगापुर में है, अबू धाबी में है, कुवैत में है, जरा क्लस्टर्स आती। उसमें हर बार जोनल और क्लस्टर्स करको पार्ट्स करको रहती। तो अब हमें साउथ जोन में जो है 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट आपको तुम्हारा हैदराबाद, तमिलनाडु ये साइड आया। तो साउथ जोन 2 में हमें ही, साउथ जोन 2 करको बोले तो गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, सम पार्ट ऑफ केरला और लक्षद्वीप, ये पूरे मिला को साउथ जोन 2 करको बोलती। ये पूरा कंपटीशन एक प्लेस में करती, जो कि ये साल दावणगेरे में हुआ। दावणगेरे में हुई में उसमें जो है कंपटीशन में 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रोक्स रहती। तो एक फ्री स्टाइल रहता है, एक बैक स्ट्रोक रहता है, एक बटरफ्लाई रहता है, एक ब्रेस्ट स्ट्रोक रहता है, जो कि सबसे टफ स्ट्रोक रहता है। तो वो टफ स्ट्रोक में ब्रेस्ट स्ट्रोक कर आपको ब्रेस्ट स्ट्रोक कर रहे। साउथ जोन 2 में जो कंपटीशन चला दावणगेरे में चला, सो उसमें ऑल ओवर साउथ जोन 2 120 किड्स की क्या को थे। उसमें फर्स्ट क्वालिफाई है, गोल्ड 50 ब्रेस्ट स्ट्रोक में फर्स्ट क्वालिफाई है, जो कि क्वालिफाइड पीपल विल गो फॉर नेशनल्स। जो ये साल हम हरियाणा में था, तो दिल्ली में जाको, वहां से हरियाणा बॉर्डर है, वहां जाको परफॉर्म करे। वहां ऑल ओवर इंडिया अलॉन्ग विथ अबू धाबी, अम्मान, वहां के भी पूरे बच्चे आको थे। तो वहां मॉर्निंग में सिलेक्शंस होती फाइनल्स क्वालिफाई करने के वास्ते। फर्स्ट क्वालिफाई है टॉप 8 में, क्वालिफाई हो को सिल्वर 2nd प्लेस हमारे मैसूर के वास्ते एक प्राउड है। तो पूरे मैसूर से एक ही एक बच्चा नेशनल्स में क्वालिफाई हुआ, सो एक बार प्लेस करे। सो मेरे हिसाब से अब तक अंडर 11 कैटेगरी में, जहां तक मेरी जानकारी है, श्योर नहीं हो, मगर जहां तक मेरी जानकारी है, अब तक नेशनल्स में बॉयज अंडर 11 में मैसूर से कौन भी क्वालिफाई हो को मेडल कर को नहीं, फर्स्ट। मुबारकबाद हो आपको। तो समीर क्या बचपन से ऐसे ही थे, क्या जज्बा था उनमें? तो एक्चुअली ये हमारा मेन मोटो जो था, इनका हेल्थ के ऊपर फोकस करने वाले थे। एक महीने को खाली फीवर आना, बार बार 2-2 महीने 3-3 महीने को डॉक्टर्स के पास जाना। तो उन्होंने क्या बोले, डॉक्टर्स नारायणा में डॉक्टर्स अच्छे डॉक्टर्स थे, पीडियाट्रिशियंस। तो उन्होंने तुम्हारे बच्चे को रेजिस्टिंग पावर कम है, तो हम ऐसा बोले, तो हमें स्पोर्ट्स में फोकस करेंगे। अगर को सबसे पहले इनिशिएटिवली चामुंडेश्वरी स्टेडियम में हमें एथलेटिक्स कोच के पास डाले, संदीप सरगर को ही, बहुत अच्छे कोच है, उनके पास डाले। जो यूकेजी और फर्स्ट स्टैंडर्ड के बीच में जो समर कैंप करको था, उसे डाले। सो तो वहां से हमने स्विमिंग पूल भी दिखा, जो कि हमने मालूम नहीं था वहां स्विमिंग पूल है। अगर को हो को वो 1 साल की हो को था, तो स्विमिंग पूल को डाले, जरा रेजिस्टेंस पावर बढ़े दे, इनकी हेल्थ अच्छी रन दे। अगर को लेकिन जरा चीजें क्या ही, फ्लावर्स के अपने आप के एक फ्रेग्रेंस रहते हैं, अपने आप की एक खूबसूरती रहती है, वैसे हर बच्चे में एक चीज रहती है, जो कि ब्रेस्ट स्ट्रोकर हमने मालूम नहीं था, गॉड गिफ्टेड ब्रेस्ट स्ट्रोकर। तो उसमें वो पहचान बाहर निकली। अब तक वो कहाँ की जाना था, कोविड आगा बीच में, तो 1 ईयर 1.5 ईयर प्रैक्टिसिंग नहीं। तो 5th स्टैंडर्ड तक जो करी, 1 to 5th हमें इनको मेन हेल्थ कॉन्शियस को डाले। सो जो कि वो एक आपको ये पता नहीं था कि ऐसा। जी सर, आने वाले दिनों में क्या समीर को इसी तरह आप साथ देते रहेंगे? सर, हमारा एम जो है ओलंपिक्स तक लेको जाना। हमारे आवाम के बच्चे के नाम जो है स्पोर्ट्स में बहुत कम है, पढ़ाई में कहाँ की बहुत आगे निकलती, वो कहाँ की सर्टन प्लेस में जाकर रुक जाती, पेरेंट्स का फॉलो अप नहीं रहा। तो
बच्चे आगे बढ़ना को बोले तो बहुत मुश्किल है। आप मानो या ना मानो 4:30 को इन्हों मॉर्निंग उठे तो फिर 10:30 कुछ थके कुछ सिर देते सो। अच्छा, अर्ली मॉर्निंग 4:30 को रात के 10:30 मॉर्निंग 2 आवर सेशन रहता है, इवनिंग 2 आवर सेशन रहता है, हॉलीडेज में 3 आवर्स 4 आवर्स सेशन रहता है, जो कि मॉर्निंग एंड इवनिंग काउंट करे तो यहाँ से पठन को जाता 3 रोज रोजाना। फिर एक बार मुबारकबाद दे रहा हूँ आपको जी शुक्रिया। किसी भी बच्चे की कामयाबी में पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आपने जैसे कि कहा कि समीर की हेल्थ को लेकर आपने जैसे डॉक्टर से मिला तो आपने एक फैसला किया कि इनको स्पोर्ट्स में डाला जाए। आपको खुद पता नहीं था कि इस बच्चे के अंदर अल्लाह ने इतनी सलाहियत दी है। जी। तो वाकई में तमाम वालिदैन के लिए एक इंस्पिरेशन है कि अपनी हिम्मत हार जाने से कुछ नहीं हासिल होगा, बल्कि बच्चे के अंदर मौजूद सलाहियत को अगर हम लोग इसी तरह अगर मोटिवेशन करते रहेंगे तो समय जैसे हर घर में बच्चे हो सकते हैं इंशाल्लाह। आपस में उनको मोटिवेशन करने की जरूरत है। आपकी एक दफ्तर भी बैठी हुई है, उनके बारे में बताइए। जी, ये जो है ऑलरेडी फॉलोअर है भाई के। तो इन्होंने तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में शुरू किया था स्विमिंग इन्होंने। इनका नाम मारिया कुलसुम है। तो ये 1:4 है भाई से। अच्छा, 1:4। इन्हों जो है फर्स्ट स्टैंडर्ड में सीखे सो इन्हों फर्स्ट स्टैंडर्ड में ऑलरेडी 4 स्ट्रोक्स चैंपियन ही नो। तो परफॉर्म करने के वास्ते एक स्टेज होता है। तो अभी जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट से KSA को हर साल मीट होते हैं, हर साल 2 मीट्स होती हैं बड़े बड़े कनाडा का स्विमिंग एकेडमी को बोल को। तो उसमें क्वालिफाई है तो फाइनल्स SFI स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया उसमें क्वालिफाई 2-3 साल कंटिन्यू क्वालिफाई होती ना, उन्हें ओलंपिक्स खेलो इंडिया को जाते सो। तो उसमें एक रोल था ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 को। ग्रुप 4 बोले तो अंडर 11 में आता, जो कि ग्रुप 4 अब कैंसिल हो गया है। वो स्टेज इनको मिलना था 10 ईयर्स के होना, लेकिन उनके जो इरादे हैं वो आने वाले में मजबूत है। जी जी। वालेकुम अस्सलाम। जैसे कि अभी समीर साहब बता रहे थे आपके बेटे अरमान के बारे में। जी, वाकई में एक बड़ी खुशी की बात है और मैसूर वालों के लिए एक फख्र की बात है कि इस बच्चे ने जो लोग सोचा करते हैं वो आज उस मुकाम तक पहुंच चुका है। और न जाने आने वाले दिनों में और क्या कामयाबी होगी। और मैसूरियन होकर तो मैसूर के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैडम, बीइंग ए मदर आप क्या फील कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत खुशी महसूस होती है कि इतना तो इमेजिन नहीं करे थे जितना हमने खुशी मिलकर है। माशाल्लाह इनो कर सो हार्ड वर्क इनका डेडिकेशन को अल्लाह एक रास्ता देखो है, उसमें बहुत खुशी बच्चा आता हासिल कर लग जा रही ना कर को। स्कूल से भी बहुत सपोर्ट है, फिर पूल से भी सपोर्ट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा भी उनके सबके हार्डवर्क, इनके हार्डवर्क और उनके सपोर्ट से बच्चे को इंशाल्लाह आइंदा तरक्की भी अच्छी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी भी आपके साथ दुआ है। और मैडम मेरा एक समीर भाई से एक बात मालूम हुई कि सुबह 4:30 बजे बच्चा उठता है जी जी, और रात 10:30 बजे सोता है। जी, ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि नौजवान बच्चे भी आज जी 10 बजे या 11 बजे उठ रहे हैं, जी, अपनी जी। काहिली का सबूत पेश कर रहे जी। हैं। ऐसे में इस तरह का अरमान का करना, इसका तो बारे में थोड़ा बताएं, कैसे उठ जाते हैं? पूरा इनके फादर का डेडिकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल इनके फादर का डेडिकेशन। सुबह को पूरा पूल का रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा स्विमिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पोर्ट्स का पूरा इनो टेक ओवर कर को ही बच्चे का पूरा भी हर चीज़ मैसेज टिनोस करती। इनका डाइट कॉन्शियस पूरा भी इनके फादर देख ले रही। एकेडमिक वाइज मैं बच्चे को हेल्प कर लेको हूँ। वही मैंने जो स्टार्टिंग में जैसे बताया, वालिदैन दोनों का, पेरेंट्स का दोनों का जब तक तालमेल सही रहता है और बच्चों के लिए तरक्की रहती है, दोनों का भी एक पार्ट बराबर रहता है। जी जी। तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा। और आप अपने बारे में थोड़ा बताएं कि आप क्या करते हैं? मैं मिसबा अमरीना, मैं टीचर हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ। नंजनगुड़ मरलूर में मेरा अपॉइंट होके है। हाँ, वहाँ पे रोजाना मेरा टीचिंग जॉब चल रहा है। इसके अलावा भी आप घर का जिम्मेदारी? जी जी जी, हाउस में होम मेकर हूँ साथ में। हर चीज जो है सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं होता। सिर्फ पेरेंट्स का अगर को नहीं, सिर्फ बच्चे में रहा तो भी नहीं होता। ये जो है स्विमिंग पूल से भी हमना होता सपोर्ट है। और कौटिल्य विद्यालय जो मैसूरू दटगली में है, वो स्कूल से हमना बहुत मैक्सिमम सपोर्ट है। चेयरमैन सर से लेको वैन ड्राइवर तक भी हमना बहुत बड़ा सपोर्ट है। क्यों? तो उनके सपोर्ट के बगैर बच्चा टाइम पे आना, टाइम पे जाना, होमवर्क्स, इवन क्लास में क्लास टीचर्स तक इसकी तारीफ को क्या बोलती, बच्चे के ऊपर ज्यादा प्रेशर डालो न को, उन्हें कितना पड़ा तो हमें मैनेज कर लेती। इवन एक टाइम पीरियड में थक को सो भी जाता, फिर भी उसे क्या भी डिस्टर्ब नहीं करते। बुला को हम ना बच्चा तुम्हारा सो जाता अगर को क्या भी ये नहीं करते। उन्होंने अपने आप में एक प्राउड फील करती। तो ये बार जो हरियाणा में जाको CBSE में नेशनल्स में 2nd प्लेस कर को आया इन्हें, वो बेस पर हमना चेयरमैन बुला को ऑनर कर को
तो इनको मेरे तरफ से एक गिफ्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड जो है वैन ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फी पे करे सरकार ने, और नेक्स्ट ईयर से तुम्हारे स्कूल की तरफ बड़ी टेम्पो ट्रैवलर कार्ड को छोटी गाड़ी डालती जो कि अरमान जल्दी पहुंचना और जल्द लेट स्कूल से घर से निकलना और स्कूल से जल्दी पहुंचना ऐसा फैसिलिटी करको देती, और ट्रांसपोर्टेशन की फी भी तुम्हें 10th स्टैंडर्ड तक बंदे सरकार नहीं क्यों करको बोले तो हमारे कौटिल्या विद्यालय का नाम ही शाइन कर रही, तो हमने एक प्राउड मोमेंट ये करको बोल को ऑनर करको। और स्विमिंग पूल जो है उनका जो स्विमिंग पूल भी है वहाँ क्लब में जो प्रैक्टिस कर रही चामुंडेश्वरी स्टेडियम में कर रही, सो अलॉन्ग विद दैट तुम्हें स्कूल में 24/7 कभी भी होना आप स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस कर सकती हैं करको, वो भी एक फैसिलिटी करको दिए। सर एक आखिरी सवाल है, हमारे खुसूसन हमारे माशरे में एक बात रोना रोया था कि हमें कोई पूछता नहीं, तो ऐसी बातों में अगर आप लोग अरमान जैसे बच्चे को सामने लाए हैं, इसकी मेहनत को लेकर बच्चे ने खुद कहा कि जितनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज मेरे वालिद करते हैं, मदद करते हैं, तो इसी तरह स्टडीज़ में उनके मदर को डेडिकेट किए हैं। सर मैं तमाम पेरेंट्स जो देख रहे हैं कौसर न्यूज़ को, आपका क्या मैसेज है सर? सर मैं हर पेरेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये अपील करता हूँ कि सिर्फ बच्चों के लिए जो है ना अच्छी स्कूल में जाके जमा देना, पैसे बन देना, फंड बन देना तो हमारा फर्ज हो गया ये समझते हैं, लेकिन बच्चे का हर बैठना हर उठना, कहाँ पे बैठ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, टाइम उसका कहाँ ज्यादा वक्त बिता रहा है, वो जी वो नहीं करना, और बच्चे को कंप्लीट फॉलो अप करना और उनको अपना जो बिजी रखना, तो उनका शेड्यूल टाइट रहना, तो वो उनका क्या होता है कहाँ तो भी एक फ्रैग्रेंस निकलते हो बच्चे में, वो फील्ड में उनको प्रैक्टिसिंग के वास्ते छोड़ना नहीं कर को बोले तो क्या करती यूजुअली हमारे पास फाइनेंशियल कितना अच्छा रहा तो भी सही जगह पर नहीं जाता, SLC क्रॉस करे गाड़ी 2 व्हीलर अच्छे मार्क्स ले लेगा, टैब मोबाइल आईफोन ये रकम से रहता। हमारा बच्चे को हर चीज फैसिलिटी है, घर में पीसीज ही मोबाइल्स है, हर चीज है, मगर उसे छीने भी उसे टाइम नहीं रहता, तो हमें अपने आप को कोसती हमारा बच्चा कब भी टीवी में रहता है, कब भी मोबाइल में रहता है। अरे आप वक्त इस दिनों को उसे एक शेड्यूल में उसे एक ट्रैक बना को दियो, जो कि वो ट्रैक को उन्हें दौड़ना पसंद करना, हर चीज भी वहां भी रहती है, वो ट्रैक को उन्हें दौड़ना शुरू करे तो वहां भी एक्सपेंस लगता है, इधर उधर खर्चा करने का वहां खर्चा करके बच्चे को एक बेसमेंट बना को दिए तो इंशाल्लाह हर घर में भी एक अरमान रहता है। जी आप क्या कहेंगे? सही बोले। मैं क्या बोलते हैं, एकेडमिक का पार्ट भी इम्पोर्टेंट रहता है। अब बहुत सारे पेरेंट्स अब हम ना देख रही शायद सोचते रहेंगे सिर्फ स्पोर्ट्स में लेको कैसा बच्चे को सामने लेको जाने को, बट अकॉर्डिंग टू मैं एकेडमिक भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह अरमान खाली स्पोर्ट्स के भी मेडल्स हासिल कर लेको नहीं, SOF जो कि इंटरनेशनल लिस्ट में चलता है एकेडमिक एग्जाम में, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हर साल भी 1 या 2 या 3 अवार्ड्स रहती चुन के। अब इस बार 2022-23 में ISSO में इंटरनेशनल रैंक 4th आको है, तो उसका भी इनको जो है स्कूल से अवार्ड से भी मिला था। अपार्ट फ्रॉम दैट मैथ्स में, मैथमेटिक्स से, फिर साइंस से, इंग्लिश पूरे में भी एक या मेडल अचीव करते थे। मैं पेरेंट्स को क्या रिक्वेस्ट करती हूँ तो मैं बच्चे को स्पोर्ट्स के साथ एकेडमिक के ऊपर कंसंट्रेट करें, तो सामने आइंदा जो है इनको स्पोर्ट्स कोटा जो है गवर्नमेंट की तरफ से है, उसमें तुमना वेरियस अपॉर्चुनिटीज मिलती, तब तुमना सीट्स के वास्ते भी तुमना क्या होता है जरा फैसिलिटी होती है। तो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि एकेडमिक के साथ स्पोर्ट्स के ऊपर भी जरा कंसंट्रेट करो बच्चे।